genetic code, the group of 3 nitrogen base is called as a genetic code. तुम लोग देखते हो ऐसा बारकोड रहता है बहुत सारी जगह पे, there is something called as barcode, ऐसा रहेगा ना, there are barcodes ना, कोई मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, you see there are barcodes स्कैनिंग के लिए, तो लाइक दैट वे बारकोड कैसा रहता है वैसा जेनेटिक कोड रहता है. Now what is the genetic code? The genetic code is made up of group of 3 nitrogen base is called as genetic code. ठीक है, अगर हम लोग 3 का बनाते हैं और देयर आर टोटल 4 डिफरेंट नाइट्रोजन बेस, कितने नाइट्रोजन बेस है? 4 नाइट्रोजन बेस है, और कितना का ग्रुप बना रहे 3 का, तो 4:3 करेंगे. 4:3 क्या होता है? व्हाट इज 4:3 बच्चे लोग? व्हाट इज 4:3? 4:3 इज इक्वल टू 64. 4:3 का मतलब होता है 4 into 4 into 4. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. तो there are 64 codons, and ये मैंने क्लियरली व्हाइट बोर्ड में सिखाया था. ठीक है, तो it is already known that DNA is the master. DNA is the master molecule of a cell that initiate, guides, regulates and control the process of protein synthesis. वो शुरुआत करता है, वो गाइड करता है, वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस सब कुछ करता है और टर्मिनेट भी वही करता है. To perform this complicated function, it must carry the requisite information for the synthesis of protein. तो उसमें एक information होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए. Obviously, this information is verified, नहीं, verily located in the DNA itself. ये information किधर होता है? DNA में ही होता है. The site for storing this information lies in the sequence of nucleotide. वो प्लेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है वो किधर रहता है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में रहता है, एज एविडेंट बाय यानोफ्स्की एंड साराभाई. देखो ये दो जन ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था. अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर. ये सब मैंने सिखा दिया तुमको, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट. देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल, but of which only 61 code for 20 different amino acids. 64 codon में से. The DNA molecule has 4 types of nitrogen base. Nitrogen base 4 टाइप का होता है, adenine, thymine, guanine, cytosine. ठीक है. Now identify these. Now to identify these 20 different types of amino acid, the question arises then how it is possible that 20 type of amino acid are encoded by 4 types of nitrogen base. According to FHC Crick, Frederick H.C. Crick, okay, this information is stored in the form of coded language. ये information coded language में form में रहता है. जो बारकोड वगैरह हम लोग बना रहे हैं पहले से ही है हमारे बॉडी में, called as genetic code. It contains total how many? The group called as codon. The group called as codon. Words बोला गया codon, specifying representing a particular amino acid. So genetic code therefore is a collection of nitrogen based sequence of amino acid. A single nitrogen based codon singlet will encode 4 different types of amino acid. एक कोडॉन 4 टाइप के अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर सकता है. मतलब एक सिंगल कोडॉन कितने अमीनो एसिड को एनकोड कर सकता है? 4. ओके. फिर बाद में क्या दिया है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस कॉल्ड एज डबलेट विल स्पेसिफाई ओनली 16. 2 का, देखो मैं बता रहा हूं तुमको, 2 का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो डबलेट दैट इज इक्वल टू 16 होगा, और 3 का कॉम्बिनेशन कितना होगा? ट्रिपलेट दैट इज 64. बट ट्रिपलेट विल हैव 64. ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक में नहीं दिया है. 4 का 16 कैसे होगा और 3 का ट्रिपलेट का 64 कैसे होगा, जो मैंने बताया तुमको, याद रखो. हाँ. नाउ amino acid. Hence G. Gamow 1954 suggested that a codon in a codon there must be combination of 3 consecutive nitrogen bases. कितना? 3 consecutive nitrogen base होना चाहिए. consecutive मतलब एक के बाद एक.
ठीक है, टू स्पेसिफाई 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर हम लोग 3 का करेंगे तो देयर वुड बी हाउ मेनी 64 डिफरेंट कोडॉन्स होगा। तो code words is the dictionary genetic codon that each code word that have a triplet codon. Every 3 consecutive nitrogen nucleotides in DNA will constitute a triplet codon. ठीक है, हर 3 consecutive क्या बनाएगा, triplet codon बनाएगा। The genetic code is a triplet code was achieved evidence by first by Crick। हाँ, याद है वॉटसन एंड क्रिक, ये क्रिक ने बताया सबसे पहले। And using frame shift mutation. However, M. Nirenberg, okay, and Matthey were able to synthesize artificial mRNA। ये निरनबर्ग ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे वो टाइम पे। अच्छा क्या उनको भेजा स्टडी के लिए, ब्रिलियंट थे वो। उन्होंने mRNA बनाया। Now which contain only one type of nitrogen base, that is uracil homopolymer, एक ही टाइप का था। Using this synthetic polymer U sequence was transferred to protein synthesizing enzyme। A small peptide of phenylalanine molecule, एक molecule है phenylalanine, ये एक type of amino acid है phenylalanine, 20 amino acid है ना वैसा। This explain that UUU code for phenylalanine। अगर एक ही टाइप का है तो तीन तीन का ग्रुप करेंगे तो UUU ही होगा। Later different homopolymers codes were deciphered, codons formed by 2 or more base were also tried। फिर बाद में आर्टिफिशियली 2 या उससे ज्यादा बेस का भी कोडॉन बनाने का कोशिश किया आर्टिफिशियली। नाउ अभी एक और डॉक्टर है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये हरगोविंद खुराना कौन है, ये देखा जाए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इन इंडिया। इंडिया में उन्होंने जेनेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को बहुत सपोर्ट किया। ही डिवाइस द टेक्निक ऑफ फॉर आर्टिफिशियली synthesizing RNA mRNA with repeated sequence known as nucleotides। उन्होंने mRNA को आर्टिफिशियली बनाया जिसमें एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा। by using synthetic DNA, Dr. Khorana prepared chains of polyribonucleotides with known repeated sequence of 2 or 3 nucleotides। CUC, UCU, CUC, UCU देख रहे हो है ना, दो टाइप का है। This resulted in formation of polypeptide chain having 2 amino acid placed alternately। तो CUC किसको ले रहा है, ल्यूसिन को ले रहा है, और UCU इसको ले रहा है, सेरिन को ले रहा है। तो पहले वाले केस में सिंगल अमाइनो एसिड का था, इधर 2 अमाइनो एसिड का था। सिमिलरली polynucleotide chain was with 3 nitrogen base repeats gave polypeptide chain with only 1 amino acid। Example CUA, 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 CUA। तो ल्यूसिन ही लेगा। लेटर 7 ऑर्किया established, नहीं सेवेरो ऑर्किया, 7 पढ़ लिया मैंने, सॉरी है। सेवेरो ऑर्किया ने ऑर्कोआ established that enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing the RNA। तो उसने बताया कि आरएनए बनाने के लिए क्या एक एंजाइम की जरूरत है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, with defined sequence and template independent manner, enzymatic synthesis of RNA। Finally, Nirenberg, Matthey, and Ochoa deciphered all 64 codons in the dictionary of genetic code। ये सारे 64 कोडॉन के बारे में ये तीनों मिलके ही कर पाए। ठीक है, ये एक्चुअली देखा जाए तो वो 64 कोडॉन देखो इधर बुक में दिया है तुम्हारा, देखो ऑल 64 कोडॉन्स। इन्होंने क्या किया, UCAG बराबर है, और इधर भी UCAG बनाया, और इधर भी UCAG का एक एक सबका ग्रुप लिया। ठीक है, अभी देखो ये यू बराबर है, और इधर का पहला यू, फिर दूसरा इधर का यू, इधर का यू, इधर का सी। समझ रहे हैं, देखो यू, यू, और ये यू, पहला वाला बन गया
यू यू यू। दूसरा देखो, फिर यू, फिर यू, फिर ये सी, क्या बन गया, यू यू सी। फिर बनेगा यू यू यू, और फिर ये ए, फिर बन गया यू यू ए। फिर यू यू और जी, यू यू जी। सेकेंड केस में यू सी यू, देखो यू सी यू, फिर यू सी सी, फिर यू सी ए, और यू सी जी। ऐसा कर करके 64 कोडॉन को क्रैक किया। ये बहुत आसान काम नहीं था, ये बहुत डिफिकल्ट काम था। इतने लोगों ने मिलकर न जाने कितने सालों का परिश्रम, मेहनत था उनका। During replication and transcription, a nucleic acid is copied to form one another nucleic acid. रेप्लिकेशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी करता है दूसरे न्यूक्लिक एसिड में। These two processes are based on complementary principle. During translation, the genetic information is transferred from polymer of nucleotide to polymer of amino acid. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड में था, दैट इज डीएनए में या आरएनए में आ गया, वो अभी ट्रांसफर करना है अमाइनो एसिड में, जिससे वो अमाइनो एसिड का चेंज बनना चालू हो। हियर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस वाला प्रिंसिपल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे कोडॉन एंटी कोडॉन का प्रिंसिपल काम करेगा। इट इज एविडेंट दैट द चेंज इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल रिजल्ट इन चेंज इन अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में चेंज आया तो अमाइनो एसिड में भी चेंज आएगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कैरी करता है। सिंपल है ना, न्यूक्लिक एसिड दैट इज जेनेटिक मटेरियल, वो चेंज हो गया तो अमाइनो एसिड का भी चेंज हो जाएगा। दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अल्टीमेटली ये बात कंफर्म होगा कि जेनेटिक कोड ही है जो हमारे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को करता है कंट्रोल। व्हाट इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इंक्लूडेड बाय दिस इज, देखो UCA, देखो UCA, UUU, UCC, GGG, AGU ऑफ mRNA सेगमेंट। अच्छा, इसका क्या आएगा, U का क्या आता है अपोजिट, बताओ मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री। U का आता है A, बिकॉज T के जगह पे A है ना, AT होता है। C का क्या आएगा, G, फिर A का क्या आएगा, U, फिर UUU मतलब क्या, AAA, फिर UCC मतलब AGG, ओके, फिर GGG मतलब CCC। ऐसा करने का इसको कॉम्प्लीमेंट्री। खाली टी के जगह पे क्या आएगा, यू आएगा, और यू की जगह पे ए आएगा। क्यों, क्योंकि इन आरएनए द थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, द जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए हैज सर्टेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। डीएनए का जो जेनेटिक कोड है इसमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है, अ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोडॉन। वो क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive bases constitute कोडॉन। 3 का ग्रुप ऑफ 3, ऊपर देखो तुम लोग डायग्राम में अभी भी दिख रहा है ना, 3 का ग्रुप को बोलते हैं कोडॉन। कंस्टिट्यूट कोडॉन विच स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कैरी करता है। ये याद रख लो, द बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज ऑलवेज फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। दिमाग में फिट कर लो, जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है इट इज ऑलवेज फ्रॉम डायरेक्शन 5' to 3'। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर वो बैक्टीरिया हो या वेदर वो प्लांट हो या वो एल्गी हो, कुछ भी हो, वो लिविंग है तो उसमें जेनेटिक कोड ऑन ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, जेनेटिक कोड हैज जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब इट शोज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट शोज डेफिनेट पोलैरिटी, दैट इज डायरेक्शन। इट इज देयरफॉर ऑलवेज रेड फ्रॉम 5' to 3'। हमेशा मैंने बताया था, रीडिंग इज ऑलवेज फ्रॉम 5' to 3', नेवर फ्रॉम 3' to 5'।
3 to 5 नहीं, 5 to 3 होता है, अदरवाइज द मैसेज विल चेंज, मैसेज चेंज हो जाएगा। जेनेटिक कोड का 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, वो कॉमालेस कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ वन कोडॉन, एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, बाजू के कोडॉन इसको ओवरलैप नहीं करते। If non-overlapping, then with 6 consecutive base, only 2 amino acid molecule will be there in the chain. Had it be overlapping with 6 bases, there would be 4 amino acids molecule in the chain. Experimental evidence, ये सब बताया गया है experimental evidence that it is non-overlapping. Now I would advise you to read the 2 pages. Next property, fourth property, the genetic code is commaless. देख रहे हो तुम लोग, ये कोड बना इधर, इधर किधर भी कॉमा वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं, ए यू जी यू सी यू जी, है ना, यू सी जी ए सी जी सी सी यू, इट इज कॉमालेस, देयर इज नो कॉमा। So there is no gap or punctuation mark between the successive consecutive codon. Fifth point, genetic code has degeneracy. Yes, degenerate क्यों होता है? Usually a single amino acid is encoded by a single codon. However, some amino acids are encoded more than one codon. कुछ अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन भी कोड करते हैं, एनकोड करते हैं। एग्जांपल, सिस्टीन has 2 कोडॉन while isoleucine has 3 कोडॉन। ये सिस्टीन क्या है और आइसोल्यूसिन क्या है? ये अमाइनो एसिड है। सिस्टीन का 2 कोडॉन है और आइसोल्यूसिन का 3 कोडॉन है। Degeneration of codon is explained by Wobble hypothesis. Either Wobble is not a scientist. I don't know whether it is a scientist or not, but this hypothesis was given by Crick only. Here, the first 2 bases in different codons are identical, but the third one varies. Now let me explain you this in very simple words. Look at this. Actually क्या होना चाहिए इधर? G का C, A का U और G का C। कभी कभी ये तीसरा वाला जो है वो पेयरिंग नहीं होता है, नॉन पेयरिंग होता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो जैसे कि इधर जी का सी है, सी की जगह पे वो ए हो सकता है या वापस यू हो सकता है, तो भी पहला 2 अगर कोड हो गया, जुड़ गया, इट इज डन अकॉर्डिंग टू Wobble हाइपोथेसिस। तो जरूरी नहीं कि तीसरा कोडॉन एनकोड होगा। ओके, नॉट एक्सप्लेन, नॉट गिवन डायग्राम ओवर हियर। सो हियर क्या बोल रहा है? द फर्स्ट 2 बेस मैंने जो बताया था तुमको, in different codons are identical, but the third one is. मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो। फॉर एग्जाम्पल, ये अमाइनो एसिड है, बेटा, ओके। एक टीआरएनए आया, कौन आया? टीआरएनए। अब टीआरएनए में क्या रहेगा? ये देखो यहाँ पे है, हम लोग नाम देते हैं इधर ए यू जी यू सी सी। तो ये क्या आएगा? देखो, ए का क्या आएगा? यू, यू का क्या आएगा? ए, और जी का कितना आएगा? सी। ये परफेक्ट पेयरिंग है। वोबल पेयर में क्या आएगा? यू है ना, यू का ए आ गया और सी का जी आ गया, फिर सी का जी आना चाहिए ना, इधर समझ लो ए है। तो ये पहला 2 परफेक्टली पेयर हो रहा है ना, तीसरा नहीं हो रहा है, तो तीसरा विल नॉट बी कंसिडर्ड। पहला 2 पेयर हुआ ना, वो अमाइनो एसिड को कैरी कर लेगा। तो यही बोलना चाहता है, द फर्स्ट 2 पेयर बट द थर्ड वन वरीज। इधर लिखा है ना, द थर्ड वन वरीज, उसका मीनिंग बता दो, ठीक है। Now we'll go ahead. The genetic, next, genetic code is universal.
by and large, it all in all living organisms, the specific code same amino acid. Example, AUG always specified amino acid methionine in all organisms, from bacteria up to human beings. The genetic code is non-ambiguous. Non-ambiguous मतलब क्या? Genetic code is encoded by a particular codon. Alternatively, two amino acid will never be encoded by same codon. दो अमाइनो एसिड एक ही कोडॉन से एनकोड नहीं होता है. ठीक है, थोड़ा चेंजेस होता ही है. नेक्स्ट देखो, द जेनेटिक कोड इज सॉरी इनिशिएशन एंड टर्मिनेटिंग कोडॉन. अभी कोडॉन जो AUG होता है, मैंने बताया था, वो इनिशिएटिंग कोडॉन होता है. बाकी जो स्टॉप कोडॉन मैंने लिख के दिया था, या नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन, वो है UAA, UAG और UGA. देखो इधर लिखा है. आउट ऑफ 64 कोडॉन, 3 कोडॉन्स आर नॉनसेंस कोडॉन. इसको टर्मिनेटिंग कोडॉन भी बोलते हैं या स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं. इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. Now it is universal. As such, it is accepted. It is universal. Usually in all organisms, specific codon specify the same amino acid. Codon and anticodon. Codon are present in the mRNA and anticodon are present in the tRNA. मैंने अभी वो डायग्राम करके दिखाया था ना अभी. हाँ, रिमेम्बर, ऐसा एक डायग्राम करके दिखाया था अभी, है ना. ये जो tRNA में है, ये tRNA में जो है, ओके, ये एंटीकोडॉन है. और जो mRNA में है वो क्या है? कोडॉन है. नाउ विल गो अहेड. One second. We'll go ahead. Universal, okay. Codon is a part of DNA. AUG is a codon. It is always represented by as 5' to 3'. Anticodon is a part of tRNA, always represented as 3' to 5'. It is possible to predict the sequence of codon on mRNA by studying the sequence of amino acid in polypeptide chain. ये देखो, consider the given mRNA strand which has undergone mutation, थोड़ा mutation में गया है, and lost nucleotides A, C and G. A, C, G lost कर दिया है. ठीक है. Resultant mRNA is represented by 1, 2, 3. देखो नीचे दिया 1, 2, 3. That is the resultant mRNA. That is the resultant mRNA. ठीक है. 1 second. Now we are going to study 1, 2, 3. You can see 1, 2, 3. This is 1, 2 and 3 he's talking about. The first one is normal. Okay. Now what you see, resultant mRNA 1, 2, 3 with the help of checkerboard of amino acid. Checkerboard method, Punnett square method, जो first topic में कराया था. Checkerboard amino acid explain the changes in the amino acid sequence that will occur in such mutation. पहले में देखो AUG है, तो A lost हो गया है लास्ट में. देखो UAA है ना, तो U के बाद A को देखो लॉस हो गया बीच में. इधर लॉस हो गया, लॉस हो गया ना. इधर देखो, कैन यू सी दिस रेड स्पॉट? हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे A लॉस हो गया. सेकंड केस में देखो क्या लॉस हो गया है? C. तो C देखो किधर लॉस हुआ है क्या सेकंड में? और थर्ड में क्या लॉस हुआ है? G. देखो यहाँ पे C लॉस हो गया. ठीक है. तो ये तुमको बताने का है. इट इज अ होमवर्क गिवन. दे हैव गिवन यू सम होमवर्क.
म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. म्यूटेशन इज अ फिनोमेनन मतलब एक हैपनिंग है, प्रोसेस है, in which sudden change in the DNA sequence takes place. It results in the change of genotype. Genotype मतलब genetic character. Change in the character. You know genotype and phenotype we have studied in chapter 1 only. 1 नहीं अपना इसके पहले वाले चैप्टर में किया था हम लोग. 3 chapter. During mutation, possibility of loss, deletion or gain, insertion, duplication of the segment DNA result in alteration of chromosome. समझो कोई एक सेगमेंट ऐड किया या डिलीट हो गया तो चेंज आ जाता है, दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन occurs due to change in the single base pair of DNA. This is known as point mutation. We are going to study point mutation in chapter 5 also. क्या म्यूटेशन occurs due to change in the single base pair? एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ तो वी कॉल इट एज पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया अर्लियर चैप्टर में जो हम लोगों ने किया था. Deletion or insertion of base pair of DNA sequence frame shift mutation, deletion mutation. Now insertion of deletion of one or two base pair, the reading frame from the point of insertion or deletion or of three or multiple three क्या बोल रहे हैं, resulted in three base pair insert delete result in insertion or deletion of amino acid. वो जो 3 बेस पेयर है उसमें कोई इंसर्ट करते हैं या कोई डिलीट करते हैं, डिपेंड्स. ये आगे दिया है यार इसके डायग्राम्स. टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल. वी ट्रांसफर आरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है. एडाप्टर क्या होता है, ज्वाइन करता है ना, कनेक्ट करता है ना. देखो एडाप्टर हम लोग लगाते हैं चार्जिंग के लिए, है ना एडाप्टर. तो टीआरएनए वैसे ही काम करता है. साइंटिस्ट कंसीडर दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म इन व्हिच द टीआरएनए विल रीड द कोडॉन एंड साइमल्टेनियसली बाइंड विद इट. देखो इधर दिया ना मैकेनिज्म, ये एंटी कोडॉन है. जी ए सी नीचे है तो ऊपर क्या आएगा, जी का क्या आएगा सी, ए का आएगा यू और जी का आएगा सी. तो जी ए जी का सी यू सी आई. कोडॉन also simultaneously bind with the amino acid, does not have any special capacity to read the codon. So tRNA is considered as an adapter molecule. This role of tRNA was understood much later. ये बाद में मालूम पड़ा. Flower leaf structure दिया with 2 dimension of tRNA possesses a anticodon loop and has base complementary to the codon. It is also called as anticodon. Now the amino acid acceptor and 3' end. Amino acid accepted at 3' end. देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्सेप्ट किया ना 3' end में, ठीक है, at 3' end. For a specific amino acid there has to be specific tRNA. Initiator tRNA. For specific methionine there are no tRNA for stop codon. Stop codon के लिए कोई tRNA है ही नहीं, ठीक है. Therefore tRNA looks like inverted, उल्टा लगता है, 3 dimension. Can you tell why tRNA is called as adapter molecule? वो एडाप्ट वो बराबर फिट करता है ना उसके अंदर, इसके लिए इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ऑफ कोर्स आरएनए इज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए. द बेसिक साइट अगर देखेंगे तो इट इज राइबोसोम. राइबोसोम इज अ प्रोटीन सिंथेसिस का साइट. Which molecule carries the information of protein synthesis from gene? mRNA takes information from gene. Which molecule carries amino acid from the cytoplasm to ribosome? It is tRNA. अभी ट्रांसलेशन. नाउ ट्रांसक्रिप्शन तो मैंने पिछली बार बोर्ड पे लास्ट टू लास्ट टाइम सिखाया भी था, आई थिंक लास्ट टाइम. फिर रीडिंग किया था हमने ना टेक्स्ट बैक से. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन. अभी ये जो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या था, इट टेकिंग इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, और एमआरएनए को स्टडी किया, जेनेटिक कोड को स्टडी किया. अभी ट्रांसलेशन इज टेकिंग इंफॉर्मेशन that is carrying the specific amino acid from the cytoplasm and making a new protein पूरा chain.
तो इसमें टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोम सबका रोल है. Translation is a mechanism in which the codon of mRNA are translated to a specific amino acid in the sequence form of polypeptide on ribosome. All the type of proteins are synthesized by cell within itself, intracellularly. The process of translation requires amino acid, mRNA, tRNA, ribosomes, ATP, magnesium ions, enzymes, elongation, translocation, and release factors. Now the amino acid form raw material for 20 for protein synthesis. समझे amino acid तो main है protein synthesis. There are about 20 types of amino acids known to form. Now there these are available in the form of cytoplasm. DNA controls in the cytoplasm. DNA controls the synthesis of protein having amino acid in a specific sequence. वो sequence कौन लिखता है? DNA से mRNA तक. Information DNA में था. This control is now possible through transcription of mRNA. The genetic code is specified for particular mRNA, specific for a particular amino acid. एक amino acid के लिए एक genetic code अलग है. RNAs serves as intermediate molecule between DNA and protein. So RNA क्या है? DNA से protein बनाने के लिए intermediate molecule. Ribosome serves as a site for protein synthesis. वो जगह है जहाँ पे protein synthesis होता है. Each ribosome consists of large and small subunit. बड़े यूनिट होते हैं, छोटे सब यूनिट होते हैं. These subunits are separately occur separately in cytoplasm. Only during protein synthesis these subunits get associated together due to magnesium ion. Magnesium ion की वजह से ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है? Otherwise वो जुड़ेंगे नहीं. In eukaryote it is 50s and 40s type का I think. So that forms 80s type. The ribosome has one binding site for mRNA and 3 binding site for tRNA. Pair of P site, promoter site, polypeptide tRNA site, P site. A site, amino acid tRNA site. एक दिया polypeptide tRNA site, दूसरा amino acid acyl tRNA site, ठीक है? And E site, that is exit site. Only the first tRNA amino acid complex direct enters the P site of the ribosome. ये बताता हूँ मैं. In eukaryotes, a groove is present between the two subunits of R ribosomes. It protects the polypeptide chain from action of cellular enzymes and also protects the mRNA from the action of nucleases. Now यहाँ पे diagram देखो. यहाँ पे देखो initiation site दिया है. देखो फिर बाद में दिया है E site, exit site. देखो exit site, A site. ऐसा अलग-अलग site होता है. ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है? I think आज के लिए काफी है.